Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. After a lot of struggle, we have been able to get into the session. Yes. So I hope you get something good out of the session. Yeah. So, Can we start? yeah, without much delay Yes. from all the participants and our today's resource person, Mitali ma'am, and we'll now request to Good start the afternoon, Mitali ma'am. It's very nice once again we are eagerly waiting for your. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. All the Okay. participants. It's an earnest request that please stop your videos. Please close your videos and mute yourself so that our expert trainer can give the best. And please annotate yourself always in between and don't disturb the trainer, please. Thank you, ma'am. Thank you so much, Aryavat Sahodaya. Thank you so much, dear teachers. First of all, a big thank you for waiting. Sunday, Monday, Tuesday, and today is Wednesday. And finally, we are together for this wonderful session on SQUA. See, actually, I'm not aware that how many of you are really exposed to this new concept of SQUA. Although our topic for today is inclusive education in SQUA, but I will give you a small overview also so that you understand that how the SQUA process proceeds further, how it can help. Okay, so allow me to share my presentation. Yes, here it is. I hope it is visible to all of you. Yes, ma'am. It is visible, no? Absolutely. Yes, ma'am. Thank you so much. Now, I would like to put it on slideshow view so that the screen is a little bigger. Okay. I think we are sorted now and we can start. So first of all, let me tell you what is a full form of the word SQUA. So SQUA basically means school, S for school, Q for quality, A for assessment, and there's another A which means assurance. And nowadays it is not only SQUA, we say it's SQUAF. F is there at the end, and this F means framework. Okay, so school quality assessment and assurance framework. Now, what is the meaning of this? Let us try to understand in very short that what do we actually mean when we say school quality assessment and assurance. Now, very common, very generic statement I'm making. This is almost admission time is approached in all the schools. Now the admission season is towards its progress. So what do all schools advertise? All schools advertise that we have state-of-art infrastructure, we have CCTV surveillance, we have smart boards, we have playground, we have buses, we have female squad, etc., etc., etc. Common. You will see if you pick up the leaflets of 10 big schools or 10 small schools, small and big, I'm saying in the sense of number of students, there's no other meaning of that. You will see more or less the leaflets look the same. The content is the same. The design is different. The way you put up is different. है वो दाल भात और सब्जी, लेकिन कैसे हम परोस रहे हैं, maybe that is different. So now, suppose you're a parent, then how will you understand that where to put my child? Which school can be the best school for my child? How to understand this? So what CBSE has done is, CBSE has made a quality check. Now, for example, suppose today you go home and you're at home, you are served a cake. And then your wife says that or your husband says, whoever is there at home will say, okay, let's eat the cake. Now, when we eat the cake,
then maybe we say that अरे यार it's not very good, something is missing. Or maybe you will say so tasty cake, इतना अच्छा केक तो मैंने कभी खाया ही नहीं है. दोनों पॉसिबिलिटीज है. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं या कोई आपसे ये पूछे कि भैया आपने कहा कि ये केक उतना अच्छा नहीं है, क्यों कहा? या अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपने ये क्यों कहा कि केक बहुत अच्छा है, व्हाट इज द रीजन? तो क्या आप 5 रीजंस बता सकते हैं व्हाई दिस केक इज गुड एंड व्हाई दिस केक इज नॉट गुड? दिस इज स्क्वायर. अगर आपके दिमाग में ये चीज आ जाती है तो आप स्क्वायर को समझ जाएंगे कि मुझे एक एक पॉइंटर देना है कि इस काम को हम क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या है. और इस काम को करने के बाद हमने जो अचीव करना था वो अचीव किया या नहीं, और अगर नहीं किया तो हमें क्या 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 इंप्रूवमेंट प्लान्स बनाने हैं. दिस इज स्कोप. यानी हमारे स्कूल में जो भी काम होता है, या वो पढ़ाई लिखाई के काम हो, वेदर इट इज एक्टिविटीज, वेदर इट इज एक्सकर्शंस, वेदर इट इज सीबीएसई क्लस्टर्स, वेदर इट इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, कुछ भी आप कर रहे हो, लंच, व्हाटएवर, वॉशरूम्स, हर चीज का एक क्वालिटी होना चाहिए. और उस क्वालिटी को आप ही असेस करेंगे. आपके स्कूल में कोई नहीं आएगा असेस करने. You will assess the quality of your school. There are certain parameters which are given. आपको इन parameters पे assess करना है अपने स्कूल को, और आपको ये सोचना है कि मेरा improvement scope कहाँ है. मैंने अपने स्कूल को असेस किया 10 पैरामीटर्स पे, 200 पैरामीटर्स पे, 300 पैरामीटर्स पे, और मैंने पाया कि नहीं, 100 जगह ऐसा है जहां मेरे स्कूल को और इम्प्रूव करना है. तो इम्प्रूवमेंट का प्लान बनाइए. हाउ इट विल इम्प्रूव. अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर है, इसको अच्छा होना चाहिए, तो थोड़ी होगा. देयर शुड बी एन एक्शन प्लान. What will the child do? What will the teacher do? What will the parent do to improve the quality of the child? To improve the academic performance of the child, to improve maybe the behavior of the child. This is SCORE. I hope all of you have understood कि SCORE का मतलब क्या है. SCORE is the school quality check. Now, ऐसा हो सकता है, maybe it will happen in the next 2 years time or 3 years time, आप अपने स्कूल को जब ऑडिट करेंगे तो हो सकता है कोई आपको चेक करने आए कि भैया आपने तो अपने स्कूल को 100 में 100 दे दिए हैं, तो हमें जरा बताओ कि आपके स्कूल में 100 में 100 कैसे हुआ. समझने के लिए आए, और वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे. जैसे कॉलेजेस में होता है ना, NAAC एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, व्हाटएवर इट इज. सिमिलरली आपके स्कूल का भी क्वालिटी बाद में जाकर चेक हो सकता है. और ये हो सकता है कि स्कोर में जो आपको जितने भी नंबर आएंगे वो आपके स्कूल का एक बहुत बड़ा फोकस पॉइंट हो सकता है कि भाई इस स्कूल को स्कोर में 100 नंबर है, इस स्कूल को 140 नंबर है, इस स्कूल को 200 नंबर है, इस स्कूल को 50 नंबर है, इस स्कूल को 80 नंबर है. नाउ द पेरेंट्स विल आल्सो अंडरस्टैंड, अच्छा अगर इसको इतने नंबर है मतलब इसकी क्वालिटी बेटर है, इसका असेसमेंट बेटर है, इसका एश्योरेंस बेटर है. तो हमारे स्कूल को आगे ले जाने के लिए, हमारे स्कूल को मूव अहेड करने के लिए हमें इस क्वालिटी एश्योरेंस की जरूरत है, और यही सीबीएसई हमारे लिए लेकर आया है. इसका नाम है स्कोर. तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर विद स्कोर नाउ. यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ स्कोर. So what is SCORE? SCORE is a set of benchmark which comprises a framework for school assessment and assist in overall development. तो CBSE has laid down the standards and best practices for the same. अब आप ये पूछेंगे कि मैम हमको एक चीज बताइए कि स्कोर करके मुझे क्या फायदा, सिर्फ एडमिशन? तो आप लोग तो सारे टीचर्स हैं, आप कहेंगे मुझे एडमिशन से क्या लेना देना. अगर मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं तो भी मुझे उतनी सैलरी मिलेगी, अगर मेरे क्लास में 20 बच्चे होंगे तो भी मुझे उतनी सैलरी मिलेगी. हो सकता है, मे बी, आई नो योर टीचर्स, आप ऐसा सवाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो मैं आपको एक आंसर देना चाहूंगी कि स्कोर का मतलब सिर्फ हमारे नंबर्स, कितना नंबर मुझे आया उस असेसमेंट में और उससे मेरे कितने पब्लिक मेरी तरफ आकर्षित हुए, स्कोर का ये मतलब नहीं. स्कोर का ये मतलब है कि एक भी काम जो आप अपने स्कूल में करते हो वो स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं. जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी होटल में जाकर पनीर चिली खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे दुकान में पनीर चिली खाएं जिसका बहुत सारा आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल KFC, हम लोग सब KFC को जानते हैं, आप KFC के किसी भी ब्रांच में जाकर कोई भी आइटम खाइए, आपको मोर और लेस टेस्ट सेम मिलेगा.
व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उनका जो रेसिपी है वो कॉमन है, कितना मसाला डालना है, किस चीज में डालना है, कैसे डालना है, कब डालना है, किधर डालना है, इट इज द सेम। यही है स्क्वा का पर्पस। आप अपने स्कूल में जो भी काम करते हैं, पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, गेम्स करते हैं, कम्युनिटी आउटरीच करते हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, there is a plan, then you do it, then you assess it, and then you improve it. So what happens? There's a cycle, and the cycle is very important, friends. आप सब कुछ भूल जाओ, साइकिल का नाम मत भूलना। PDCA cycle: plan, and then do, and then act, and then improve. तो जैसे जैसे आप इंप्रूव करोगे ना, थोड़ा 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 करके इंप्रूव करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी पढ़ाई लिखाई की पद्धति, आपकी एक्टिविटीज करने का तरीका, आपके बच्चों को खिलाने का तरीका, आपके एक्सकर्शंस का तरीका बेस्ट हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा? एज अ टीचर यू विल ऑल्सो इंप्रूव एवरी डे। यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर स्टूडेंट्स। जो रिजल्ट आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, जो मैनेजमेंट आपसे हमेशा कहता है, आई वांट टू सी द रिजल्ट, आई वांट टू सी द रिजल्ट, वो रिजल्ट कैसे आएगा? वो रिजल्ट स्क्वा को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से आएगा। वो रिजल्ट पीडीसीए साइकिल को फॉलो करने से आएगा। हमें पता ही नहीं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमें मेहनत कैसे करना चाहिए। हम क्या करें कि मेरे बच्चे के रिजल्ट में चेंज हो? तो अगर आप स्क्वा के हर डॉक्यूमेंट को, हर पेज को ध्यान से पढ़ेंगे, तो एवरीथिंग इज गिवन देयर, और स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करेंगे, तो आप अपने whatever is your aspiration, whatever is your goal, wherever you want to reach, you can reach that very very easily. ठीक है? तो मैं महसूस कर रही हूँ कि you are understanding what is SCORE. तो what is the process of assessment? Number 1 is self assessment. अगर आप self assessment कर लेते हैं और आपको लगता है मुझे सब जगह फुल नंबर आ रहा है, तो आप बाहर से ऑडिटर भी बुला सकते हो कि प्लीज कम टू माय स्कूल, और मेरे स्कूल को स्टैंप लगाइए दैट आई एम स्कोर एक्रेडिटेड। ये आपका विश है। इट इज नॉट कि हमेशा बाहर से आएंगे, लेकिन पहला स्टेप है कि आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे अपने स्कूल का कि वेयर आर यू रियली। स्कोर का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। मैं बेसिक एक स्ट्रक्चर आपको स्कोर का समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले स्कोर में डोमेन्स होते हैं, बहुत सारे डोमेन्स है, मैं आपको बताऊंगी अभी। डोमेन के अंदर सब डोमेन है, उस सब डोमेन के अंदर स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स के अंदर आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, और परफॉर्मेंस इंडिकेटर तक पहुंचने के लिए आपको जरूरत होगी, यू रिक्वायर एविडेंसेस एंड रिकॉर्ड्स। तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको समझाऊं। स्क्वा में बहुत सारे डोमेन्स हैं। कितने डोमेन्स आपको बता दूं? स्क्वा में 7 डोमेन है। वो 7 डोमेन क्या क्या है? करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, दैट इज डोमेन 4 जो हम आज डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, इसके बाद लीडरशिप, एंड फाइनल इट इज बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन। ये 7 चीज मिलकर एक स्कूल बनती है। अगर आप इन 7 चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है स्कूल में। 7 डोमेन है। उस डोमेन के अंदर बहुत सारे सब डोमेन्स। अब जैसे हम करिकुलम की बात कर रहे हैं, तो अचानक करिकुलम की सारी बातें एक जगह नहीं हो सकती है, उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया गया। सब डोमेन्स के अंदर स्टैंडर्ड्स है। स्टैंडर्ड्स मतलब एक सब डोमेन के अंदर 1 2 3 4 5 6, कहीं में 3, कहीं 4 है, कहीं 6 है, कहीं 10 है। इतने स्टैंडर्ड्स हैं कि सारे स्टैंडर्ड्स आपको क्वालिफाई करने हैं। इसके बाद परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? जैसे मान लीजिए एक बच्चे को A1 आया, तो आप क्या कहेंगे? A1 क्या करता है? वो इंडिकेट करता है कि इस बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर किसी बच्चे को D आया, तो वो इंडिकेट करता है कि इस बच्चे के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब है, यहाँ पे बहुत सिंपल है, 4 ही परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, 1 2 3 4। 1 का मतलब कि आप अभी बिल्कुल निचले तबके में हैं। 2 का मतलब आपने शुरू कर दिया है। 3 का मतलब आपका सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया है, और 4 का मतलब है कि आप एक ऐसे डोमेन में चले गए हैं जहां आप अपने आप को खुद ब खुद इंप्रूव कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। वहां आपको हैंड्स होल्डिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है? लेकिन आप कहेंगे कि मैम मैं तो जब सेल्फ असेसमेंट करूंगा तो सब में 4 में 4 दे दूंगा अपने आप को। आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में अपने आप को 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं या 4 देते हैं, तो उसका एविडेंशियल प्रूफ होना चाहिए आपके पास। यू हैव टू प्रूव इट। एविडेंसेस हैं, उसमें लिखी हुई है कि आप मुझे ये एविडेंसेस चाहिए। यू हैव टू गिव एन एविडेंशियल प्रूफ, तभी आप अपने आप को 1 2 3 या 4 कह सकते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट वर्ड से बहुत खुश मत हो जाइएगा कि हम कुछ भी लिख देंगे। बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसा कर रहे हैं, वो अपने स्कूल को बिल्कुल सब में 4 में 4 दे रहे हैं, तो वहां थोड़ी गलतियां हो रही हैं। इसको समझिए। सेल्फ असेसमेंट हैज टू बी सपोर्टेड विद प्रॉपर एविडेंसेस।
तो मैंने अभी आपको बताया ना स्क्वा के 7 डोमेन्स हैं। देखिए, दिस इज द फ्लावर ऑफ स्क्वा, स्क्वा फ्लावर कहते हैं हम लोग इसको। एक स्कूल में, अगर ये स्कूल क्या एक बगीचा है, तो इतने छोटे 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 हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर होते हैं। जब मैं फ्लावर कह रही हूँ तो मैं बच्चे को मीन कर रही हूँ। तो अगर आप एक बच्चे को भी लेकर ये बात सोचिए, जस्ट वन चाइल्ड आपके दिमाग में हो, तो उस एक बच्चे में क्या क्या चीजें होती हैं जब वो स्कूल में आता है, तो क्या चीजें होनी चाहिए। करिकुलम पेडागोजी असेसमेंट होता है इस बच्चे का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करता है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज यानी आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल, आपके ग्रुप डी स्टाफ, आपके सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, हो सकता है वो बच्चा अच्छे से सुन नहीं सकता, अच्छे से बोल नहीं सकता, अच्छे से देख नहीं सकता, और उतना ही नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है। मैं अलग हूँ, हिमांशु सर अलग है, राधिका मैम अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारा लुक्स अलग है, हमारा फिजिक अलग है, हमारा आउटलुक अलग है। क्या हम सब एक साथ मिलकर एक क्लासरूम में पढ़ सकते हैं? दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। देन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, उस बच्चे को मैनेज कैसे करते हैं हम, गवर्न कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है लीडरशिप। एक स्कूल का जो लीडर होता है वो कैसा है। और सिर्फ स्कूल का लीडर का मतलब प्रिंसिपल नहीं है, प्लीज, हर स्टेप पे लीडर है। प्रिंसिपल एकेडमिक लीडर है, टीचर अपने क्लासरूम का लीडर है, एक क्लेanलीनेस लीडर्स है, एक गार्ड है वो मेन गेट का लीडर है। तो देयर आर एवरीबॉडी इज अ लीडर इन देयर ओन प्लेस। प्लीज रिमेंबर दिस, व्हेन आई से लीडरशिप आई नेवर मीन ओनली द प्रिंसिपल। और उसके बाद है बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन। बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, पेरेंट्स रोज आकर आपसे लड़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, कम्युनिटी इज नॉट हैप्पी कि आपने इस बच्चे को क्यों यहाँ रखा, इसको यहाँ से भगाओ। बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन, हमारा स्कूल जहां भी है, हम जितने लोगों के लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सब हमारी बेनिफिशियरीज हैं। उनका सेटिस्फैक्शन का क्या, आप एक स्कूल चला रहे हैं, आपकी कितनी सारी बसेस चल रही हैं, उनके ड्राइवर कंडक्टर को सैलरी मिल रही है, कितने लोगों के घर में चूल्हा चल रहा है उसकी वजह से, ये सब आपके बेनिफिशियरी हो जाते हैं। सो यू नो यू हैव टू थिंक ऑन अ वेरी वेरी लार्ज वे, बिग गोल शुड बी देयर, ओके, डोंट थिंक स्मॉल्स। यू नो स्क्वा अगर आप समझने लगेंगे तो आपका जो परव्यू है, आपका जो ओवरव्यू है, बहुत वाइडन होता जाएगा। दिस इज एडवांटेज, ठीक है। तो ये 7 डोमेन्स हैं स्क्वा के। अब हम आगे बढ़े तो आप इसको प्लीज ध्यान दीजिए कि हर डोमेन का अपना एक वेटेज है। जैसे आप लोग अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं ना, तो आप लोग वेटेज बनाते हो ना, ब्लूप्रिंट बनाते हो, चैप्टर नंबर 1 से इतने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से इतने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो वैसे ही अगर आप स्क्वा को देखेंगे तो इसमें करिकुलम पेडागोजी असेसमेंट जो आपका पहला डोमेन है, उसमें स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक दोनों आते हैं। 25 + 15, 25 + 10 35, 35 + 5 40, यानी 40% डोमेन 1 को है। करिकुलम असेसमेंट पेडागोजी 40% ऑफ स्कोर वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर 10%, ह्यूमन रिसोर्स 10%, इंक्लूसिव 10%, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस 10%, लीडरशिप 10%, बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन 10%, इतने परसेंटेज दिया गया है, यानी ये वेटेज है। अगर आपने अपने करिकुलम पेडागोजी एंड असेसमेंट को तगड़ा कर लिया स्कोर के हिसाब से, तो आपको 100 में 40 मिल गया। देखिए कुल मिलाकर 100 हो जाते हैं। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ढंग का हो गया, प्रॉपर हो गया, तो 10% यानी 50% नंबर आपको मिल जाएंगे, तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको एज अ क्वेश्चन पेपर की तरह अगर हम समझें तो ये ऐसे समझेंगे। वैसे इट इज मच मोर देन अ क्वेश्चन पेपर, इसको वैसे लिमिट नहीं करना ही शायद बेटर आइडिया है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, रिकॉर्ड एंड एविडेंस का मतलब क्या है? रिकॉर्ड एंड एविडेंस का मतलब ये होता है, देखिए बहुत कॉमन मिस्टेक, जो सबसे कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, हम लोग मान लीजिए हम लोगों ने बोला कि हमारे स्कूल में हमने एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम किया जिसमें हम बच्चों को वृद्धाश्रम लेकर गए और वहां के लोगों से मिलाया, कुछ मिठाई विठाई बंटवाया, हो गया, और हमने एक फोटो लगा दिया उसमें। हम समझते हैं कि हमने एक्टिविटी की, हमने इसका एविडेंस दे दिया, हमारा काम हो गया। एक्चुअली नो। अब आपको, जैसे मैंने अभी कहा, आपको बड़ा सोचना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वृद्धाश्रम गए, क्यों गए, क्या पर्पस हमारे वृद्धाश्रम जाने का? हमारे वृद्धाश्रम जाने का पर्पस यही था कि मान लीजिए वॉट एवर ABCD हमारा पर्पस है, ठीक है, उस आपने जाकर वहां कुछ किया, क्यों किया? उस ABCD पर्पस को फुलफिल करने के लिए। आपने एक फोटो दे दिया, क्या उस फोटो से ये साबित हो जाता है कि आपका ABCD फुलफिल हो गया? क्या उस फोटो से साबित हो जाएगा? अगर हो जाता है तो ओके, और अगर नहीं होता है तो आपको दूसरा कुछ एविडेंस देना पड़ेगा। मे बी उस वृद्धाश्रम के जो मैनेजर है उनसे लिखा हुआ एक चिट्ठी चाहिए, आपको एक वीडियो क्लिप चाहिए, बातें करते हुए चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज ये है कि हर एविडेंस
के साथ आपको याद रखना होगा बहुत इंपॉर्टेंटली कि मेरी प्लानिंग क्या थी, व्हाट डिड आई बी, व्हाट डिड आई डू, PDC, मेरा चेक्स क्या था, मैंने कुछ किया। आज मिताली मुखर्जी ने एक सेशन लिया, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे सेशन का फीडबैक चाहिए तो आप लिखेंगे ना कुछ। अगर मैं आपको पॉइंटर्स दूंगी, मैंने बोला कैसा, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा था, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था, मैं टॉपिक के हिसाब से चल रही थी या नहीं, मान लीजिए मैं आपको 4 पॉइंटर देती हूँ तो मैं आपसे कहूंगी 4 पॉइंटर में मुझे 1 से 5 तक में कुछ नंबर दीजिए, तो आपके पास ये पॉइंटर्स होने चाहिए। जब भी आप स्कोर को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप प्लीज याद रखिए कि मैंने प्लानिंग क्या की थी, और जब हम चेक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द प्लान मेरा काम हुआ कि नहीं, हम चेक करेंगे। हो सकता है आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन प्लान जो किया था वो आपने किया ही नहीं, तो आपका एविडेंस फेलियर हो जाएगा। सो प्लान के हिसाब से यू हैव टू डू द एक्टिविटी और उसको चेक करना है। जब आप चेक करेंगे तो जरूर हमेशा हमारे साथ लाइफ में होता है कि हमें पता चलता है अरे यार हमने तो प्लान किया था ऐसे, लेकिन थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा हम लोग प्लान से पीछे रह गए, तो फिर आप इंप्रूवमेंट मेजर्स लीजिएगा। देखिए बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपली रिलेट करिए। हमारे घर में किसी की शादी हो रही है, मेरी बेटी की शादी है, हमने बहुत कुछ प्लान किया, बहुत सारी चीजें प्लानिंग की, फिर हमने बहुत कुछ किया, लेकिन जब हम हिसाब किताब लेकर बैठते हैं, बजट लेकर बैठते हैं, तो हमें क्या महसूस करते हैं, अरे वहां तो 5,000 खर्च होने थे, मेरे 6,000 हो गए, वहां मुझे 1 लाख खर्च करना था, वहां मेरा काम 90 में ही हो गया। देयर इज ऑलवेज अ प्लस एंड अ माइनस एवरीवेयर। तो अगर हम ये कहें, अगर हम टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हम ये सोचे कि नहीं मैंने जो क्या किया वो फर्स्ट क्लास था, कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं था, तो वहां आपकी लर्निंग बंद हो जाएगी। सो ऑलवेज कोर्सेस कि यू शुड प्लान, देन यू शुड डू, देन यू शुड चेक एंड देन यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव। ओके, तो 4 मैच्योरिटी लेवल्स हमने देखा। अब लेवल 1 2 3 4। 1 में क्या है, इंसेप्टिव, यानी आपने शुरू किया काम करना स्कोर के हिसाब से। सिस्टम इज एट इनिशियल स्टेज, प्रैक्टिसेस आर इंडिविजुअल बेस्ड। लेवल 2 का मतलब है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है कि अब हम काम करना शुरू कर चुके हैं। सिस्टम इज एन अर्ली कंस्ट्रक्टिव ईयर, जब हम सिस्टम्स को तैयार कर रहे हैं, मेरा सिस्टम तैयार हो रहा है, मेरा सिस्टम बन रहा है, और जो भी प्रोसेस है मेरा वो करेक्टिव इन नेचर है, यानी मैंने ये गलती की मैं इसको सुधार रही हूँ, मैंने गलती की मैंने इसको सुधार रही हूँ, ये करेक्टिव। 3 का मतलब है स्टेबल। अब आपकी सिस्टम्स जो है वो डिफाइन हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, लोगों को पता है कि उनको क्या करना है, और आपकी प्रैक्टिसेस प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव हैं अभी भी। भाई गलती नहीं होनी चाहिए, देख लो भाई डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम करो। पहले क्या था, हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था हमें क्या करना है, अब हमें पता है हमें क्या करना है, इसीलिए हम बार बार डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे कि मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए। ये प्रिवेंटिव एक्शन है। करेक्टिव, अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं उसको सुधारूंगी, मेरा ओपन माइंड होना चाहिए। एंड लेवल 4 इज डायनामिक। देखिए कभी भी जिंदगी में, कभी भी आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर लो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। हमें और सीखने की, और जानने की, और अच्छा करने की का एक स्कोप हमेशा रह जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं डायनामिक इवॉल्विंग। यानी आपके सिस्टम सही है, आपके करेक्टिव मेजर्स सही है, आपके प्रिवेंटिव मेजर्स सही है, अब आपका काम है इसको और आगे ले जाओ, जितना आप जा सकते हो। वो स्कोर के लेवल से ऊपर चला गया। लेवल 4 का भी देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक बात अच्छे से समझिए, लेवल 4 का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप गलतियां नहीं करते हो, आपके कोई करेक्टिव एक्शंस नहीं होती, बिल्कुल नहीं। आपकी 1000 करेक्टिव एक्शंस हो सकती है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप डॉक्यूमेंट पढ़ते हो कि प्रिवेंटिव एक्शन लिया, फिर आपने कोई काम किया, कुछ गलतियां हुई, गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस गलती को रियलाइज करके आपने एक इंप्रूवमेंट प्लान बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप गलतियां, आप ये समझते हैं कि हम 100 में 100 ले आएंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, सारी चीजों के एविडेंस तैयार कर देंगे, डॉक्यूमेंट बना देंगे, तो ये गलत सोच है। तब आप स्कोर को अचीव कभी नहीं कर पाइएगा। आपको ये सोचना है सबसे पहले कि जब आप डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं, आपको ये सोचना है कि मेरा स्कूल कहाँ कहाँ लैक कर रहा है, मेरी पढ़ाई, मेरे पढ़ाने का तरीका कहाँ कहाँ लैक कर रहा है, वेयर आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ। उसके बाद वहीं से स्कोर शुरू होता है। ठीक है, हम बहुत सारे लोग, हम लोग उल्टा काम करते हैं, मैंने भी किया था, मैंने 1 साल स्ट्रगल किया और पूरा उल्टा काम किया, मैंने एविडेंस बनाने से काम शुरू किया, आई जस्ट डिड द रिवर्स वर्क। फिर जितना मुझे स्कोर समझ में आया, देन आई रियलाइज कि नहीं, द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज आई हैव टू डू अ सेल्फ चेक, मेरा स्कूल है कहाँ, and then I have to start the PDCA. Okay, so you also don't repeat the same mistake which I made and start first analyzing and assessing yourself. ठीक है, ये देखिए, अब आप कहेंगे ये डोमेन्स है, ये सब डोमेन्स है, ये स्टैंडर्ड्स है। जैसे मान लीजिए करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट के अंदर 6 सब डोमेन है,
और इसके अंदर टोटल हर सब डोमेन में कुछ कुछ स्टेटमेंट्स एंड बेंचमार्किंग है, कुल मिलाकर 22 है ऐसा। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 सब डोमेन है, 19 स्टैंडर्ड्स है। ह्यूमन रिसोर्स में 5 सब डोमेन है, 11 स्टैंडर्ड है। ये ऐसे ऐसे करके आप देख लीजिए। तो टोटल हमारे डोमेन्स कितने हैं? 7। सब डोमेन्स कितने हैं? 47। और बेंचमार्क्स कितने हैं? 81। अब आप 81 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी रिजल्ट होता है इतने मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं आपके, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हर क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स क्या है? 4। तो 81 बेंचमार्किंग्स हैं, 81 स्टैंडर्ड्स हैं स्कोर में। तो 81 को काइंडली आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैक्सिमम आपको उतने ही नंबर आ सकते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। लेकिन पहले गो में अपने आप को 4 मत दे दीजिएगा। देखिए अभी मैं आपको जो समझा रही थी, मैं उसका एक पेपर दिखा रही हूँ। उसको एक 306 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसका मैं एक पेज आपको दिखा रही हूँ, जस्ट 1 पेज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। अब मैं आपको ये समझाती हूँ डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आप अगर पिछले स्लाइड में जाएंगे, एक सेकंड मैं थोड़ा सा पिछले स्लाइड में चली जाऊं, तो आप देख लीजिए प्लीज, इसको याद रखिए। डोमेन, सब डोमेन एंड स्टेटमेंट्स, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। डोमेन, सब डोमेन एंड स्टेटमेंट्स। अब मैं स्लाइड शो पे आ गई, नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देखो डोमेन यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि डोमेन एक सिंगल पेज में लिखा हुआ रहता है, करिकुलम पेडागोजी, या आप लिख सकते हैं डोमेन में, आप लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉट एवर। एम आई नॉट ऑडिबल? वंदना जी इज राइटिंग आई एम नॉट ऑडिबल। कैन एनीबडी प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स आई एम ऑडिबल और नॉट? Audible. ओके, थैंक यू सो मच मैम। नाउ वो डोमेन हो गया। अब देखिए 4.1.3 ये क्या है? 4.1.3 फोर्थ डोमेन कौन सा है? आज का हमारा डोमेन है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो 4 डोमेन के अंदर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 है। उसके अंदर 4.1 के अंदर 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3। तो ये जो मैं पेज आपके सामने लाई हूं, ये 4.1.3, यानी ये सब डोमेन है, सब डोमेन का एक पेज। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बुलेट्स के अंदर, ये सारे क्या है? परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। 4.1.3 के अंदर क्या आपका स्कूल अवेयर है? क्या आपके टीचर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए? क्या आपका एसएमसी ऐसा है? क्या आपके टीचर्स ऐसे हैं? अगर ये सारा है, इसका मतलब आपने लेवल 1 पा लिया है। फिर आप लेवल 2 पे जाएंगे, अगर ये सब आपके पास है तो आपने लेवल 2 भी पार कर लिया है। अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो आपने लेवल 3 भी पार कर लिया है, और ये भी है तो आप लेवल 4 पे हैं। अब 4 के आगे नहीं जा सकते, 5 नहीं है, 4 तक है। इज इट क्लियर? तो डोमेन क्या आपको समझ में आया, सब डोमेन क्या आपको समझ में आया, और डोमेन उसके अंदर, हर सब डोमेन के अंदर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं इतने सारे। इसलिए आप अगर पिछले स्लाइड को देखेंगे माय डियर, आप देखेंगे कितने सारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हमारे पास यहाँ पे 18 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। एक सेकेंड, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। अब आप देखिए यहाँ पे डोमेन 4 में लिखा हुआ है कि हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन में 5 सब डोमेन है, और हर सब डोमेन के अंदर हमारे पास जो बेंचमार्किंग है ये कुल मिलाकर 7 है। आपको समझ में आ रहा है? आई थिंक आई एम क्लियर, यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया, ये है पीडीसीए। पीडीसीए का मतलब होता है प्लान, सबसे पहले प्लान। लेकिन प्लान करने के पहले भी आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको सबसे पहले स्कोर के सारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को पढ़ना है, और ये तय करना है कि मेरा स्कूल कहाँ है। अगर आपका स्कूल 0 पे है, 1 से भी नीचे में है, तब तो आप सोचेंगे ना कि मेरी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, 1 के हिसाब से होनी चाहिए। बहुत लोग डायरेक्ट 4 के हिसाब से प्लानिंग कर लेते हैं, गलत है। अगर मेरा स्कूल 1 पे भी नहीं है, उसके भी नीचे है, तो पहले हम लेवल 1 की प्लानिंग करेंगे, फिर लेवल 2 की करेंगे, फिर लेवल 3 की करेंगे, फिर लेवल 4 की करेंगे। डायरेक्ट जंप मत कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई ये फास्ट ट्रैक पे आपको नहीं जाना है, कोई ऐसा फास्ट ट्रैक केस ये नहीं है। तो सबसे पहले वो आप पढ़ के चेक कीजिए, उसके बाद यू हैव टू सबसे प्लान, रिफ्लेक्ट, वेयर डू यू वांट टू गो, व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग इन योर स्कूल, हाउ डिड वी गेट टू वेयर वी आर और वेयर वी वांट टू बी। जब आप अपने स्कूल का चेकलिस्ट तैयार कर रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा मुझे कहाँ पहुंचना है। क्या मुझे 1 पे पहुंच के बंद कर देना है, या मुझे 2 पे भी जाना है, क्या मुझे 3 पे जाना है, क्या मुझे 4 पे जाना है। अकॉर्डिंगली विल प्लान, देन यू विल डू द थिंग्स। हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, ये होगा। उसके बाद आप चेक करेंगे कि अरे भैया मैंने जो प्लानिंग की थी मैं उसके हिसाब से पहुंच रही हूँ कि नहीं पहुंच रही हूँ, कि गैप रह गया। अगर गैप रहा तो उसका एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद रिव्यू करेंगे।
कि मुझे पहुंचना था कलकत्ता, मैं पहुंच गई अहमदाबाद। क्यों भैया? मैं गलत ट्रेन पे चढ़ गई, मैं सो गई, उतरना भूल गई प्रॉपर स्टेशन पे। ट्रेन सही था लेकिन मैं स्टेशन पे उतरना भूल गई। क्या रीजन है? मेरे हस्बैंड मुझे सरप्राइज देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मुझे सुला दिया, कलकत्ता नहीं उतरने दिया, अहमदाबाद लेकर चले गए। व्हाट इज द रीजन? So you have to find out the reason. Then only you can act according to the reason. Clear? I hope this PDCA cycle you have understood properly. इसको हम लोग स्कॉ में एक और चीज कहते हैं, रिव्यू, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड एंड रेट, द 4R cycle. This is also known as a 4R cycle: review, reflect, respond and rate. Clear? Now व्हाट आर द फेजेस? 1 2 3 4 फेज होगी आपके लाइफ। आपका लाइफ डायरेक्टली आप पीडीसीए साइकिल से नहीं शुरू कर सकते। सबसे पहले अपना सेल्फ असेसमेंट लीजिए स्कूल्स के, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। फिर अपना डेवलपमेंट प्लान बनाइए कि हम हैं यहाँ और हमें जाना है यहाँ, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, जहां भी आपको जाना है। और उसी के साथ साथ आप इम्प्लीमेंट करिए और इम्प्लीमेंटेशन के साथ काम करिए। जहां आपको जाना है कहीं, उसके हिसाब से आप काम करिए, एक्शन लीजिए। और एक्शंस के बाद अपना सेल्फ चेक करिए, मैं वहां पहुंचा कि मैं वहां नहीं पहुंचा। और अगर पहुंच गए तो वेरी गुड, अगले स्टेप पे जाओ, L1 से L2 पे जाइए, 2 से 3 में जाइए। और अगर नहीं पहुंचे तो आपको क्या प्लान करना है, क्यों नहीं पहुंचे, और फिर अपना एक इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना है कि नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, चलो ये करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको, ये तो हम लोगों ने कर लिया, प्लान, डू, एक्ट एंड चेक, तो इसमें मैं फिर से दोबारा नहीं जा रही हूँ। आई थिंक दिस यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ठीक है, अब मैं आपको लेकर जाती हूँ डोमेन 4 में, जो हमारा आज का डोमेन है। आई थिंक बेसिक्स को इज क्लियर। कैन सम पीपल राइट इन द चैट बॉक्स whether it is clear or not, whether you want to ask something, any doubts, any problems? If you want to ask any question, please unmute and ask. This is, I was trying to give you an overview of SCOR, ताकि आपको ये समझ में आए कि जब ये SCOR का एक मोटा सा डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आएगा तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट की मोटाई को देखकर प्लीज डरिएगा मत। इट्स अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट, एवरी पेज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और आपको बड़ा मजा आएगा जब आप उसको करेंगे तो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा डोमेन 4, दैट इज इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। तो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में मैं ये, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर रिफ्लेक्शंस इन द चैट बॉक्स। नाउ इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, आप लोग टीचर्स हैं, मैं अगर कुछ कहूं तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये होता है आमतौर पे, हमारे साथ भी होता है। अगर हमें जिंदगी में बहुत खुशी मिल रही है तो हम कभी भगवान से जाकर नहीं कहते भगवान, ऊपर वाला जो भी आपका भगवान हो, अल्लाह हो, खुदा हो, जो भी है, हम ऊपर वाले से कभी ये नहीं कहते अरे भगवान तुमने मुझे इतनी खुशियां क्यों दी। लेकिन जैसे हमारे हिस्से में थोड़ा सा दुख आता है तो हम ये जरूर कहते हैं ईश्वर तुम्हें मैं ही मिली थी, मुझे ही देनी थी इतनी तकलीफ, और कोई क्यों नहीं। ये ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी। ठीक, मैं इसको रिलेट करना चाहती हूँ क्लासरूम सिचुएशन के साथ। अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो अच्छे से सुन नहीं पाता है, या उसको विजन प्रॉब्लम है, या वो उसको बैठने में प्रॉब्लम है, उसको एक जगह चाहिए अपना पैर फैलाकर बैठने के लिए, या कुछ और प्रॉब्लम है, और प्रिंसिपल आपको बुला कर गए हैं कि मैडम, सर, ये बच्चा मैं आपके क्लास को देती हूँ, हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? हमारा फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि मैम, सर, व्हाई मी? I don't know anything about this. How will I manage? Please give it to this person, give it to that person, isn't it? ये हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है कि हम कुछ भी लीक से बाहर नहीं टॉलरेट करना चाहते। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और हमने माइंड में सोच लिया कि इसका जवाब यस होना चाहिए, अगर उस इंसान ने नो कह दिया तो हमें बड़ा गुस्सा आ जाता है। यही यही है इंक्लूसिव थ्योरी। इंक्लूजन का मतलब क्या है? जो भी आए हमारे लाइफ में, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 सेकंड, देयर इज अ
I'm so sorry. This person was calling me continuously, so I thought I better just call and tell him that I'll talk later on. There was no sound because I was on mute. I'm sorry I took your 2 minutes. Okay, let me continue once again. So मैं यहाँ inclusive की बात कर रही हूँ. हमारे बगल में जो बच्चा बैठा है वो हमसे अलग है. उसका चेहरा अलग है, उसका बॉडी कंस्ट्रक्शन अलग है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, वो अलग लंच लाता है, मैं अलग लंच लाती हूँ, उसकी राइटिंग अलग है, उसकी किताबें अलग है, उसका कवर का तरीका अलग है. लेकिन जब वो मेरे बगल में बैठता है तो क्या हमारे बच्चे ये सब सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो इंक्लूजन उनके दिमाग में नहीं है. अगर नहीं सोचते हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस वो नहीं करना चाहते. सेम चीज हमारे टीचर्स के साथ भी होती है. अगर सारे अच्छे बच्चे हैं तो वेरी गुड. अगर दो बच्चा भी आपके क्लास का, छोड़िए, बात हटा दीजिए, आप नहीं सुन सकता, नहीं बोल सकता, हम ये कह रहे हैं कि अगर 4 बच्चे आपके क्लास में थोड़ा ज्यादा पढ़ाई में अपना रिजल्ट नहीं शो कर पा रहे तब भी हमारे टीचर्स परेशान हो जाते हैं. ये बच्चा तो कुछ नहीं करता है, इसका तो रिजल्ट ही हमेशा पुअर होता है. तो फ्रेंड्स, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि लाइफ इज नॉट अबाउट वननेस, सब एक जैसे हों. हम ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन रिसोर्स, मशीन से बने हुए बोतल नहीं है जिसमें सेम लेबल है, सेम शेप है, सेम साइज है. ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट. ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो इंक्लूजन को समझना बहुत जरूरी है. इंक्लूजन को समझना, उसकी रिस्पेक्ट करना, इंक्लूजन को वैल्यू करना और इंक्लूजन को अपने लाइफ में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जो लोग सोशल साइंस पढ़ाते हैं, आप लोग को पता होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड, आप अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर द रिचेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. बट हैव यू एवर थॉट व्हाई? क्यों इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इतने घने हैं, इतने हरे हैं, इतने भरे भरे से हैं, वो कभी खाली नहीं होते? क्यों? You know what is the reason? The reason is the diversity of the kinds of plant life there. हर तरीके के प्लांट्स है वहां, अलग 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 तरीके के, डाइवर्सिटी है. तो जहां भी डाइवर्सिटी होती है ना, वहां अगर एक दो मर भी जाए, गायब भी हो जाए, तो हम उनको गायब होने नहीं देते. जो बाकी स्पीशीज हैं वो हेल्प करके इनको ग्रो करने देते हैं. So let us not be a banyan tree जिसके नीचे कोई ग्रो ही नहीं कर सकता. Let us be a tree जिसके नीचे और बहुत सारे छोटे 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 shrubs, bushes, flowers, grass, everything can grow. So we don't have to become a banyan tree. So inclusion has to be adopted. That's very very important. Inclusion एक ऐसा एरिया है फ्रेंड्स जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे कम काम हुआ है, और इन ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंडिया में सबसे कम काम हुआ है. If you go to the other countries, you will see a lot of work is done on inclusion. Our country is lying far behind. इसलिए inclusion को इस domain में include किया गया है. It's very very important. Please understand what is inclusion और हम कैसे काम कर सकते हैं. So what is inclusion? हमारा SQUA क्या कहता है? ये मैंने नहीं लिखा है, ये SQUA में लिखा हुआ है. SQUA का objective है, कहते must bring about a fundamental change in the systems and processes to support and address the individual needs of each child. Every child is different. Every child is different. I'm not talking about differently abled child, not talking about Divyang. I'm talking about the general child also. Everybody is different. So we have to bring a change in the system in which individual needs can be catered to. Teachers have a problem. They have a period of 35-40 minutes. So they say, क्या मैं हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाऊं? नहीं. There has to be a method adopted for the same. Okay? They must adopt effective model of inclusive education and create an environment in which all students have an opportunity to flourish. Inclusive schools value all students as equal members of the community, engage all students, and provide a wide range of activities, both academic and non-academic. I hope you've understood this, that inclusion means, simply inclusion का मतलब होता है including everybody. So, you know, this is a model, ये DEI model है. पहला model ये है कि yes, madam, I'm right, you are right, the special educator is compulsory, but I would say you are wrong also. Please don't feel bad. Inclusion is not only the responsibility of a special educator or a counselor or the class teacher. No,
इंक्लूजन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी। मैं तो आपको बता रही हूँ, आप 2 मिनट के लिए दिव्यांग बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप 2 मिनट के लिए ये सोचिए कि मेरे क्लास में एक बच्चा है जो 90% लाता है, एक 60%, एक 30%, एक 40%, सब सही सलामत है। ये भी इंक्लूजन है। हम 30% को 90 कैसे बनाएंगे, 60 को 90 कैसे बनाएंगे, 90 को 100 कैसे बनाएंगे? Everybody has got a different way of learning, different method of learning, there's different model of teaching. This is also inclusion. So अमूमन यही होता है कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा हमारे पास आता है तो हम यही सोचते हैं अरे काउंसलर देखेगा इसको, अरे स्पेशल एजुकेटर देखेगा। नो, वो कुछ टेक्निकल चीजें देख सकता है, बट ओवरऑल इंक्लूजन तो आपके द्वारा होना चाहिए। वो स्कूल के कॉरिडोर में घूम रहा है कि नहीं, वो प्लेग्राउंड में खेल रहा है कि नहीं, वो लाइब्रेरी जा रहा है कि नहीं, वो चाट पकौड़ी स्कूल में खा रहा है कि नहीं, वो लंच शेयर हो रहा है कि नहीं, वो वॉशरूम यूज करना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट विल द स्पेशल काउंसलर डू हियर, स्पेशल एजुकेटर डू हियर? सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी। ठीक वैसे ही जैसे लाइफ स्किल्स पढ़ाना वैल्यू एजुकेशन टीचर का काम अब नहीं है, एवरीबॉडी हैज टू डू दैट। सो प्लीज रिमेंबर दैट DEI फिलॉसफी को फॉलो करते हैं हम लोग, जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड पर्सपेक्टिव्स, पीपल का डाइवर्सिटी तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन पर्सपेक्टिव मतलब हमारी सोच में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हमें अलग तरीके से सोचना होगा। अगर आप डाइवर्सिटी की सोच रखेंगे तो हम आप प्रमोट करेंगे इक्विटी को। इक्विटी मतलब हो सकता है एक बच्चा जिसको 80 आता हो, अगर आप थोड़ा सा उसको पुश कर देंगे तो उसको 90 आ जाएगा, लेकिन जिसको 30 आता है अगर उसको 90 पे ले जाना, आपको बहुत 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 ज्यादा पुश करना होगा। तो ये गलत नहीं है, आप किसी को ज्यादा पुश कर रहे हैं, किसी को कम पुश कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज आपको सबको बराबर लेवल पे लाना है। तो इक्वालिटी एंड इक्विटी इज डिफरेंट। इक्वालिटी मतलब होता है हम सबको बराबर पुश करेंगे, लेकिन इक्विटी कहता है नहीं, अगर इसको ज्यादा पुश की जरूरत है इसको ज्यादा पुश करो, इसको कम पुश की जरूरत है इसको कम पुश करो, और उस लेवल पे पहुंचाओ। तो आपके पॉलिसीज में, आपके प्रैक्टिस में, आपके पोजीशन में इक्विटी होनी चाहिए। और अगर आपने ये कर लिया तो फाइनली आपके पास इंक्लूजन का वॉइस हो जाएगा। मतलब योर स्कूल विल स्पीक इन इंक्लूजन, वो दिखेगा, आपके प्लेग्राउंड में दिखेगा। अगर आपके स्कूल में कोई बच्चा ऐसा है जो पैर से लाचार है, बहुत ज्यादा चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो क्या वो प्लेग्राउंड नहीं जाएगा? जब PHE पीरियड होगा आप उसको बैठा कर रखेंगे, वो जाएगा, लेकिन उसके बैठने की जगह होनी चाहिए, उसके हिसाब से होनी चाहिए। अगर वो जगह दिखी, इसका मतलब आपका इंक्लूजन अब दिख रहा है, वॉइस बन चुका है आपके स्कूल के लिए। इंक्लूजन ऑफ पावर, वॉइस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जब जो पावर पे लोग हैं वो इंक्लूजन को एक्सेप्ट करेंगे तो it will become the voice of the school, and when it becomes the voice of the school, finally it will become the organizational culture. आपके कल्चर में इंक्लूजन दिखना शुरू हो जाएगा। So this is known as a DEI model of inclusion. Okay, आप देखेंगे this picture is a beautiful picture. वो कितने प्यार से दिखा रहा है कि ये स्कूल में सारों का स्वागत है, सब लोगों का स्वागत है। आप देखें अलग अलग टाइप के बच्चे उसमें जा रहे हैं, सबका स्वागत है। That is an inclusive school. And this is a beautiful quote. Welcome, I change to respond to you all. Welcome. I change to respond to you all. मैं अपने आप को बदलने के तैयार हूं तुम सबको रिस्पॉन्ड करने के लिए। सो ये आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, आपकी सोच को चेंज करना होगा, स्क्वा ये कहता है। तो अभी मैं आपको एक दिखाऊंगी, सिर्फ एक सिंपल सा मैं आपको दिखाऊंगी PDCA साइकिल कैसे करते हैं इंक्लूजन को लेकर। इंक्लूजन एक डोमेन है, उसके अंदर बहुत सारे सब डोमेन है, उसके अंदर बहुत सारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक दिखा रही हूं, बाकी आप पढ़कर समझ सकते हैं। एक दिखाती हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इंक्लूजन किया, स्कूल इक्विटी एंड इंक्लूजन पॉलिसी। सबसे पहला आप अगर स्क्वा डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको नजर आएगी। पता है क्या, जितने भी डोमेन्स है उसमें पॉलिसी लास्ट लेवल पे आता है। आपने ये करा, ये करा, ये करा, आपने फिर एक पॉलिसी बनाई, लेवल 4 में पॉलिसी आता है। लेकिन इंक्लूजन एकमात्र ऐसा डोमेन है जिसमें लेवल 1 में ही आपके पास एक पॉलिसी मस्ट है होनी। यू मस्ट हैव अ पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन कि भैया जो आएगा मेरे पास एक्सेप्टेड। आप छांट नहीं रहे एडमिशन टेस्ट लेकर, इंटरैक्शन लेकर, खिलवाकर, खुदवाकर, भाई सीना फुलाओ, अगर इतना इंच नहीं हुआ तो छट गए। ऐसा नहीं होता स्कूल्स में। स्कूल इज फॉर एवरीबॉडी। ओके, सो इंक्लूजन की एक पॉलिसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूजन पॉलिसी को ही डील करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्लानिंग कैसी होगी। तो ये हमारा एक जस्ट पिक्चर है आपको शो करने के लिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक इंक्लूजन की पॉलिसी होगी। जैसे मैंने ये स्कूल का नाम हटा दिया है इसमें से, ये इंक्लूजन की पॉलिसी है।
तो आप अपने स्कूल में एक इंक्लूजन की पॉलिसी सबसे पहले बनाइए, जिसमें आप ये दिखाएंगे कि भैया देखो ये हमारा स्कूल का एम है, हम यहाँ वहाँ चाहते हैं कि इंक्लूजन का पॉलिसी हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम किसको किसको देना चाहते हैं, हम ये सारी चीजें आप दिखाएंगे कि हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, सॉरी इंक्लूजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको दे रहे हैं, हमारा की एरियाज कहाँ है जहां हम इंक्लूजन को डिजाइन कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके पॉलिसी में होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इंक्लूजन पॉलिसी। आपका इंक्लूजन, मैं सिर्फ पॉलिसी पे बात करूंगी आज बिकॉज आई डोंट हैव वी हैव मोर टाइम देन दैट। तो ये आपके इंक्लूजन का पॉलिसी था, ठीक है। अब आप इस इंक्लूजन के पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप कोऑर्डिनेटेड एचओडी को भेजेंगे, फिर आप उसका असेसमेंट करेंगे, पेरेंट जैसे आपकी स्पेशल एजुकेटर करेंगी, आप पेरेंट टीचर को मॉनिटर करेंगे, पेरेंट का कंसेंट लेंगे, उसके लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम डिजाइन करेंगे, उसका एग्जाम अलग करेंगे, ये सारी चीजें आपके पॉलिसी में होंगी। ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। प्लानिंग हो गई है, अब हम लोग डू कर रहे हैं। हमने एक फ्लो चार्ट बनाया, हमारे पास एक इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत एक दिव्यांग बच्चा आता है। तो जब वो दिव्यांग बच्चा आता है तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको किस क्लास में देना चाहिए, कौन टीचर के पास हमको देना है, फिर हम कोऑर्डिनेटर के पास जाता है, एचओडी के पास जाता है काउंसलिंग के लिए, फिर उसका एक असेसमेंट हम लोग करते हैं, फिर उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, उसकी बातों को समझते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, फिर उसको हम अकॉर्डिंगली जो सपोर्ट देना होता है वो देते हैं। अगर वो आंख से नहीं देख सकता तो उसको स्क्राइब देंगे, अगर थोड़ी ठीक ठाक आंखें नहीं है, थोड़ी ज्यादा कमजोर है तो फॉन्ट साइज को बड़ा कर देंगे पेपर का, कंप्यूटर में इसको पढ़ाना शुरू कर देंगे, मान लो उसको बोर्ड नहीं दिखता तो उसको एक टैब देंगे कि भाई तुम अपनी जगह पे बैठ के अपना टैब पे देखो, व्हाटएवर। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर एक्शन, ये एक्शन किया हमने, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं, रिक्रूटमेंट हमारा पॉलिसी है, ये पॉलिसी के तहत मैं बातें कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक परफॉर्मर इंडिकेटर को लेकर बात कर रही हूँ। हमारा रिक्रूटमेंट पॉलिसी है कि हम काउंसलर अपॉइंट करेंगे, स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट करेंगे, तो हम करेंगे क्योंकि हमारे पॉलिसी में था कि आपको रिक्रूटमेंट करना है, तो हम कर रहे हैं। हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे, हम सारे टीचर्स की, सारे ग्रुप डी मेंबर्स की, सारे बस ड्राइवर कंडक्टर की, सारी मेट की वर्कशॉप्स करेंगे कि देखो इंक्लूसिव में अगर कोई बच्चा ऐसा है तो उसके साथ ऐसा करना है, अगर कोई बच्चा ऐसा है तो उसके साथ ऐसा करना है। हम ये सारी चीजें करेंगे क्योंकि हमारी पॉलिसी में है, ठीक है। अब हम इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, पीडीसी चेक करना है मुझे, चेकिंग इज आल्सो नोन एज इवैल्यूएशन। हमने पॉलिसी बना दिया, पॉलिसी का हिसाब से हमने रिक्रूटमेंट कर दिया, स्टाफ मीटिंग कर दिया, वर्कशॉप्स कर दिया। अब हम चेक कैसे करेंगे, हाउ विल आई चेक। तो चेक करने के लिए आपको एक ट्रैकर डिजाइन करना होगा। हम एक रजिस्टर बनाएंगे जिसमें हम ये लिखेंगे कि हमने किस किस का रिक्रूटमेंट किया, हमारे पास किस किस पोस्ट का रिक्रूटमेंट हुआ, हमारे पॉलिसी में जो पोस्ट थे कि हमने सारे का रिक्रूटमेंट किया, टिक 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 टिक। फिर हम ये चेक करेंगे हमने वर्कशॉप्स किया कि नहीं इंक्लूसिव एजुकेशन पे, कब किया, कितने देर का किया, कितने लोगों का किया। तो हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए वर्कशॉप का, अटेंडेंस शीट का रिकॉर्ड होना चाहिए, वर्कशॉप का ऑडियो या वीडियो होना चाहिए। देखिए मैं एविडेंसेस की बात कर रही हूँ इस समय, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद आपने वर्कशॉप किया, क्या बताया उसमें, आपने बैठ के सबको समोसा और चाट खिला दिया, वर्कशॉप हो गया। आपने वर्कशॉप किया, उसमें अपने बच्चों को क्या, सॉरी अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को क्या बताया, उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। Are you understanding? This is known as evaluation. अब जब आप एविडेंस की बात करेंगे, मैं थोड़ा इंप्रूवमेंट प्लान बता देती हूँ, फिर मैं आपके एविडेंस पे जाऊंगी, ठीक है। आप आराम से समझ जाएंगे, आई थिंक दिस इज वेरी इजी। फिर मैं इस पे आऊंगी वापस, इफ वी हैव टाइम आई विल कम बैक टू दिस। ओके, लेट मी अंडरस्टैंड एक्सप्लेन यू द इम्प्रूवमेंट प्लान। ओके, इम्प्रूवमेंट प्लान। अब ये देखिए ऐसा आपका इम्प्रूवमेंट प्लान बनेगा, आप इसको ध्यान से देखिए। ये हमारी पॉलिसी है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, पॉलिसी, इसमें हम काम कर रहे थे। हम लेवल ऑफ मेच्योरिटी कहाँ है, हम 3 पे हैं। मान लीजिए हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम 3 पे हैं, लेकिन हमारा एस्पिरेशनल लेवल क्या है, 4, हम 4 पे जाना चाहते हैं। हमारा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, हमने वर्कशॉप कराया लेकिन डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर्स नहीं हुआ। हमने वर्कशॉप करा दिया लेकिन हमने पेरेंट को बताया कि आपने वर्कशॉप कराया, हमने मैनेजमेंट को बताया कि हमने वर्कशॉप कराया, उसमें ये की पॉइंट्स थे। हमने स्टूडेंट्स को बताया कि आपको ऐसे ऐसे करके ये ऐसे चलना होगा, यहाँ वहां वो चीजें रखी हैं, वहां लिफ्ट है, वहां रैंप है, प्लेग्राउंड में आप जाकर यहाँ बैठ सकते हैं। ये सारी चीजें डिसमिनेट नहीं हुई, ये हमारा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। प्रायोरिटी एरिया क्या है, हमें प्रायोरिटाइज आपको करना पड़ेगा, लो प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा हाई, हाई प्रायोरिटी इंक्लूसिव।
अब आपको एक एक्शन प्लान देना होगा, कैसे डिसेमिनेट करोगे? तो वी विल अपलोड द इंक्लूजन पॉलिसी इन द स्कूल वेबसाइट। हम एसओपीज को अवेलेबल करा देंगे पेरेंट्स के लिए। टीचर्स ओरिएंटेशन में एसओपी को डिस्क्लोज करेंगे। हमारे कॉरिडोर्स के बोर्ड पे हम इस पॉलिसी को पेस्ट कर देंगे। ये काम हम करेंगे, ये हमारा इंप्रूवमेंट प्लान है। कौन करेगा भैया? कौन करेगा? स्वीपर जाकर करेगी? नो, दिस वर्क विल बी डन बाय द प्रिंसिपल, आईटी टीम, स्कूल इंक्लूजन कमिटी। कब कंप्लीट होगा? डेडलाइन हम देंगे 1 मंथ, अप्रैल टू मई। इस फॉर्मेट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपके स्क्वाड के डॉक्यूमेंट में ये फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी प्लानिंग की हमने, फिर हमने किया वर्कशॉप्स, हमने रिक्रूटमेंट्स की, फिर हमने इवैल्यूएट किया कि भैया वर्कशॉप तो किया, इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? उसका मीटिंग बताएंगे, उसके फोटोग्राफ्स रखेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग रखेंगे, हमारी पॉलिसी के हिसाब से जो वर्कशॉप रिक्रूटमेंट्स हमने किए हैं कि नहीं किए हैं उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ट्रैकर। उसके बाद क्या नहीं हुआ, तो क्या नहीं हुआ? डिसेमिनेशन नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे? उसका एक प्लान बनाएंगे जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है इस वक्त। दैट इज नोन एज इंप्रूवमेंट प्लान। हर पॉइंटर के लिए you have to follow the PDCA cycle. For every pointer you have to follow the PDCA cycle. हाँ, ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि जब आप मुझे सुन रहे हैं आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये एक दिन में, एक महीने में, एक साल में करने वाला काम नहीं है। इट्स अ रेगुलर वर्क, रेगुलर सुपरविजन, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रेगुलर इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। तो आप कभी भी स्क्वाड को ऐसे नहीं सोचेंगे कि एक काम दिया सीबीएसई ने मुझे कंप्लीट करना है। नो, यू कैन नॉट। अगर आपका स्क्वाड कंप्लीट हो जाना इसका मतलब सब कुछ गड़बड़ है, सही नहीं है, कुछ ना कुछ खामियां हैं। अगर आपका स्क्वाड प्रोग्रेस कर रहा है, एवरीडे थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स आप ले रहे हैं, इसका मतलब ये कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक और आप स्क्वाड पे काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा, थोड़ा सा समय है हमारे पास, तो मैं आपको एक छोटा सा वो दिखाती हूँ, एक दूसरा डोमेन लेकर आपको बताती हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं ये स्लाइड्स आपको दिखाना चाहती थी। अगर आपके स्कूल में दिव्यांग बच्चे हैं तो आप ये बोर्ड्स बना सकते हैं। ये सारा क्या है? जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, ये इस बोर्ड से वो कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कहाँ हूँ, व्हाट कैन आई हैव, व्हाट आई डोंट वांट, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस टाइप के कम्युनिकेशन बोर्ड्स आपके यहाँ होनी चाहिए ताकि बच्चे कम्युनिकेट कर सकें। ये ट्रांसपोर्ट दिख रहे हैं, जैसे कोई बच्चा है वो चल नहीं पाता है, व्हील चेयर पे है, वो कैसे बस पे चढ़ेगा? तो उसके लिए प्रॉपर स्लाइडर होना चाहिए। फिर दीज आर द साइनेजेस, ये आपके साइनेजेस स्कूल में होने चाहिए ताकि उन बच्चों के को एक्सेस करने में दिक्कत नहीं हो, बाकी लोगों को भी एक्सेस करने में दिक्कत नहीं हो कि ये किसके लिए है। अगर कोई मान लीजिए दिव्यांग बच्चा कैंपस में है, उसको पता नहीं इसको कहाँ जाना है, तो दूसरे लोग भी उसको हेल्प कर सकते हैं। तो दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल दैट आई वांटेड टू शो यू। नेक्स्ट इज, मैं एक और डोमेन लेना चाहूंगी, सॉरी नॉट एक और डोमेन, आई एम वेरी सॉरी, एक और परफॉर्मेंस इंडिकेटर लेना चाहूंगी, आपको दिखाना चाहूंगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर, दैट इज दिस टीचर्स डायरी विथ लेसन प्लान। जब हम टीचर्स डायरी बनाते हैं, मैं तो अपने स्कूल में जब कहती हूँ कि आपको एक टीचर्स डायरी बनाना है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सारे बच्चों को समझ में आया है, ऑल चिल्ड्रन हैव अंडरस्टूड, सारे बच्चों को ध्यान में रखना है, वार्क थ्योरी को ध्यान में रख के बनाना है। तो मेरे टीचर्स बहुत दुखी हो जाते हैं, कुछ वो इसलिए दुखी होते हैं कि उनको लगता है मैम एक ही चीज को 4 तरीके से पढ़ाऊं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक्स, कैसे पढ़ाऊं, रीड राइट। क्योंकि वार्क थ्योरी कहता है कि कुछ बच्चे विजुअल है, कुछ ऑडिटरी है, कुछ रीड राइट लर्नर्स है, कुछ काइनेस्थेटिक्स लर्नर है। अब एक और चीज इंक्लूड हो गया, कुछ बच्चे दिव्यांग भी हैं, वो भी आपके क्लासरूम में बैठे हुए हैं, दिव्यांग बच्चे, उनको भी पढ़ाना है आपको, उनको भी पढ़ाना है। तो आपकी टीचर्स डायरी भी तो वैसी होनी चाहिए ना, जहाँ पे वो अकोमोडेशन हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है? चाइल्ड सेंट्रिक, फ्लेक्सिबल लेसन प्लान, नीड के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपकी क्लास में कोई दिव्यांग बच्चा नहीं है तो आप क्यों प्लान करेंगे? क्यों ऐसा कोई प्लानिंग करेंगे? आप नहीं करेंगे। दिव्यांग बच्चा है तभी तो आप प्लानिंग करेंगे। फिर सोशल स्किल्स कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब डिफरेंशिएटेड लर्निंग। तो ये हो गई आपकी प्लानिंग कि जब आप टीचर्स डायरी बनाओगे तो आप ऐसी प्लानिंग करोगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन टीचर्स डायरी का कैसे होगा, ये देखिए मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ। ये सैंपल हम अपनी स्कूल में यूज करते हैं। जब हम टीचर्स डायरी में हमें ये सब इंक्लूजन्स करने हैं, हमने प्लानिंग कर ली कि भैया मेरे क्लास में कोई दिव्यांग बच्चा भी होगा, मेरे क्लास में कोई विजुअल बच्चा होगा, कोई ऑडिटरी होगा, कोई रीड राइट होगा, कोई कैनेस्थेटिक होगा, कोई नॉट अ वेरी मतलब पेस, उसका उस बच्चे के लर्निंग का पेस हो सकता है थोड़ा कम हो। कैसे हम टीचर्स डायरी बनाएंगे इन बच्चों के लिए? तो हमने क्या सोचा, हमने कहा देखो टीचर्स डायरी को हम
कंप्लीट प्लान वो एचओडीज के साथ शेयर करेंगे, फिर वो प्रिंसिपल रैंडमली चेक करेगा। क्लास ऑब्जर्वेशन करने जब प्रिंसिपल जाएंगे, एचओडी जाएंगे, तो चेकलिस्ट होने चाहिए कि वर्क थ्योरी के हिसाब से लेसन प्लानिंग है कि नहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ लेसन प्लानिंग है कि नहीं है, तो वो यूज हुआ कि नहीं, ये चेकलिस्ट क्लास में होना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स जो हम ले रहे हैं वो रिवील करेगा कि हमने वाकई उन बच्चों को अकोमोडेट किया कि नहीं अपने लेसन प्लानिंग में। फिर एनेक्डोट रिकॉर्ड्स जब टीचर्स लिखेंगे, तो एनेक्डोट रिकॉर्ड्स देखकर हमको समझ में आ जाएगा प्रिंसिपल को या एचओडी को कि दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको टीचर इग्नोर कर रहा है अपने क्लास में कि उनको भी पढ़ा रहा है। मॉडिफिकेशन एंड अकोमोडेशंस आर मेड इन टीचिंग प्लान, यानी अगर मेरे क्लास में कोई दिव्यांग बच्चा है, अगर मेरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा इसको अच्छे से दिखता नहीं है, अच्छे से बोल नहीं सकता, अच्छे से सुन नहीं सकता है, तो मैं अपने लेसन प्लान को टेलर करूंगी, कस्टमाइज करूंगी। जैसे हमने एक शर्ट ले लिया एक्सेल साइज का, मैं जब पहन रही हूँ तो लूज हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगी, इधर से थोड़ा टाइट करूंगी, इधर से थोड़ा टाइट करूंगी, या हो सकता है लूज करूंगी। इसी को कहते हैं टेलरिंग। टेलरिंग ऑफ माय लेसन प्लान में करूंगी। उसके बाद इतना कुछ मैंने किया, टीचर भी आपसे कहेगा आके कि यस मैम आई हैव डन एवरीथिंग। चेक कैसे होगा? हाउ विल यू चेक? कैसे चेक करेंगे कि ये सारा काम हुआ कि नहीं? तो PD, अब हम लोग चेक पे हैं। C, कैसे चेक करेंगे? हम प्लानिंग, ये जो टीचर जो लेसन प्लान बनाते हैं उसको टाइम टू टाइम चेक करेंगे एंड क्लासरूम में जाकर ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए प्रिंसिपल के पास या एचओडीज के पास या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या टीचर्स के पास एक प्लान होना चाहिए कि मान लो जो मैं मिताली मुखर्जी क्लास में जा रही हूँ, क्लास 5 में मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ, तो मेरी एक कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो जाएगी और चेक करेगी कि मेरे क्लास में सारा काम हुआ कि नहीं, या बस मैंने लेसन प्लान लिख तो लिया लेकिन एग्जीक्यूट किया ही नहीं। ये इवैल्यूएशन पार्ट है मैडम, दिस इज नोन एज इवैल्यूएशन पार्ट। इसके बाद एक मिनट, जस्ट अ मिनट, अच्छा आई एम नॉट इन स्लाइड शो यू नाउ। उसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। देखिए, दिस इज माय लेसन प्लान। हमारे स्कूल में जो लेसन प्लान चलता है उसमें ये कॉलम जहाँ पे एरो है वहां लिखा हुआ है एकोमोडेशंस। आपके लेसन प्लान में एकोमोडेशन दिखना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकोमोडेशन? जो बच्चे कहने को आपके बोलचाल की भाषा में आप जिसको नॉर्मल बच्चे कहते हैं उनके लिए एक लेसन प्लान है, लेकिन जो बच्चा दिव्यांग है, जो बच्चा बहुत फास्ट सीख लेता है, जो बच्चा बहुत स्लो सीखता है, उनके लिए क्या है? उनके लिए आप जो अच्छी चीजें कर रहे हैं, जो नई चीजें कर रहे हैं, उसको आप इस एकोमोडेशंस में लिखेंगे। एकोमोडेशन का यही मतलब होता है कि मैं दूसरे इंक्लूड कर रही हूँ, अकोमोडेट कर रही हूँ सब तरह के बच्चे को अपने क्लासरूम में। तो ये आपको अपने लेसन प्लान में, क्या आपके स्कूल का लेसन प्लान ऐसा दिखता है? क्या आपके स्कूल के लेसन प्लान में है कुछ ऐसा जो दिखे कि हाँ टीचर्स अपनी लेसन प्लानिंग के दौरान दिव्यांग बच्चों को भी इंक्लूड करती हैं? या आप ये एक्सक्यूज भी दे सकते हैं कि मैम मेरे यहाँ तो कोई दिव्यांग बच्चा है ही नहीं, तो मैं क्यों लिखूं? मे बी, लेकिन अगर आ जाए कल तो कैसे लिखिएगा? तो आपको आज से ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका इंप्रूवमेंट प्लान क्या हो सकता है। इंप्रूवमेंट प्लान है ये, देखिए इंप्रूवमेंट प्लान में आपको एक शेयर करती हूँ, लेसन प्लान का ही इंप्रूवमेंट प्लान आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, इम्प्रूवमेंट प्लान फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे शेयर करते हैं कि मेरा जो दिव्यांग बच्चा है, पेरेंट ओरिएंटेशन, एकोमोडेशन, हाँ ओके, देखिए ये एक इम्प्रूवमेंट प्लान है मेरे सामने कि मेरा बच्चा लेसन प्लान मैंने बना लिया, मैंने उसके हिसाब से पढ़ा भी लिया, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा इंप्रूव नहीं कर रहा, वो अच्छा नहीं कर रहा है, मेरे को एक इम्प्रूवमेंट प्लान चाहिए। तो व्हाट इज इम्प्रूवमेंट प्लान? इम्प्रूवमेंट प्लान इज दैट देयर विल बी अ डिस्कशन विद द पेरेंट। हम पेरेंट के साथ बात करेंगे कि क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं। हम और पेरेंट और काउंसलर और हमारा स्पेशल एजुकेटर मिलकर डायग्नोज करेगा कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम उसको एक्सपर्ट टेक्निकल हेल्प देंगे। ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि आप जितने बहुत सारे बच्चों को आप बहुत मदद करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिलता। इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए? यू मस्ट कंसल्ट द अदर स्टेक होल्डर्स। हम पेरेंट्स से बात करेंगे, मैनेजमेंट से बात करेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे, हम अदर सब्जेक्ट टीचर से बात करेंगे, हम टेक्निकल हेल्प लेंगे। अगर मुझे जरूरत पड़े तो हम किसी काउंसलर के पास जाएंगे, स्पेशल एजुकेटर के पास जाएंगे, हम किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। भैया क्या प्रॉब्लम है मेरे बच्चे को, क्यों वो इंप्रूव नहीं कर रहा है? दिस द इम्प्रूवमेंट प्लान। अगर आपने इतना कुछ कर दिया तो आपका साइकिल क्लोज होता है। मैं एक लास्ट वर्ड सेंड करना चाहूंगी इसको। स्क्वाम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिस वर्ड को हम लोग कहते हैं क्लोज, क्लोज द लूप। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ।
आपका प्लेग्राउंड में बच्चा खेल रहा है, उसको गिर गया, उसको चोट लगी। चोट लगने के बाद हर स्कूल में होता होगा, आप अपने बच्चे को इन्फर्मरी में ले जाते होंगे, वहां उसको फर्स्ट एड मिलता होगा, कुछ देर बच्चे इन्फर्मरी में लेटता होगा, नहीं तो चला जाता होगा क्लासरूम में। हर स्कूल में ये होता है। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे आप ये बताओ कि पिछले 1 महीने में कितने बच्चों को चोट लगी, और कितने बच्चे कितने देर इन्फर्मरी में थे, और कितने बच्चों को फर्स्ट एड मिला, और क्या फर्स्ट एड मिला, और फर्स्ट एड मिलने के बाद वो बच्चा सही हुआ या उसको फिर मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ी। हो सकता है स्कूल में नहीं पड़ी, घर जाकर पड़ी, यानी फिर कितने दिन के बाद वो बच्चा ठीक हुआ। हाउ मेनी स्कूल्स विल बी एबल टू गिव दिस रिकॉर्ड एविडेंसेस। इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, हमारे बच्चे को स्कूल में चोट लगी, हम इन्फर्मरी लेकर गए, हमने फर्स्ट एड दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया, हड्डी वड्डी नहीं टूटा, स्टिच की जरूरत नहीं, फर्स्ट एड दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता ना मैम कि इंटरनल कोई इंजरी हुई है जो उस समय नहीं पता चल रही है, और बच्चा अगले 3 दिन एब्सेंट है। हमने क्या इन्फर्मरी से उस बच्चे के घर पे फोन किया कि बच्चा क्यों 3 दिन एब्सेंट है, कल ही तो दुर्घटना हुई थी, उसके बाद बच्चा लगातार 3 दिन एब्सेंट क्यों हो गया, क्या हुआ, उसके रिपोर्ट्स क्या है, वो ठीक कब हुआ, वो स्कूल वापस कब आया। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से क्लोज द लूप। अगर कोई भी चीज शुरू हुई है तो प्लीज उसको क्लोज करिए। स्क्वॉ का एक, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र है ये, जो मुझे मेरे गुरु ने दिया था, मैं आपको दे रही हूँ, कि स्क्वॉ का मूल मंत्र है कि जिस काम को शुरू करो उसको खत्म करो। हमारे क्लास में एक दिव्यांग बच्चा है, नहीं सुन पा रहा है, तो उसको मैंने प्लानिंग की, उसके लिए लेसन प्लान अलग से बनाया, उसको अलग से थोड़ा बहुत जो भी मेरे लेसन प्लान में थे अकॉर्डिंगली मैंने पढ़ाया। वो बच्चा रिजल्ट नहीं ला पाया, तब देन व्हाट, फिर क्या किया आपने, मैंने काउंसलर से बात की, मैंने स्पेशल एजुकेटर से बात की, मैंने फलाना से बात की, मैंने ढिकाना से बात की, आप ये कहेंगे एज अ टीचर। फिर क्या हुआ, आपने बात की, फिर उसके बाद बच्चा गया वहां, बच्चे ने अपनी काउंसलिंग कराई, बच्चे ने रिपोर्ट लेकर आया, फिर यू हैव टू कीप ऑन आस्किंग दिस। आपको हंसी आ रही है इस समय, लेकिन आपको पूछते रहना है, फिर तब तक पूछना है जब तक आपको ये रिजल्ट नहीं मिले कि अब मेरा बच्चा मिड लाइन स्ट्रीम बच्चों के जितना हाँ। समझ रहा है, पर अरे हम अभी नहीं आ सकते, आपको अरे ये नहीं आ सकते अभी, मम्मी का मीटिंग वाला कर रहे काम। उधर बैठा ना, मीटिंग कर रही है ना। सो अंकल करना है कि फाइनली जब तक मेरा बच्चा, तब तक आपको इम्प्रूवमेंट प्लान 1 2 3 4 5 बनाते रहना। दिस इज ऑल अबाउट स्क्वॉ। ओके, आई थिंक I would like to say this much only, but I cannot stop the show without saying thank you. It was a very, time was very less. Score is, even if we do it for 10 days, I think we'll not be able to complete even 10% of it. But I've tried to give you a flavor of score. I've tried to tell you how to proceed with the document. Now you can always try your hands on it and get excellent results. All the best for score evaluations, all of you. Score assessments. I should use the right terms now. Thank you so much. Over to teachers if you have any questions. Anybody has got any questions, please, you can raise it. You can write in the chat box also. If you have any questions, please. You can raise the question. You can write in the chat box. Because it's, as ma'am said, it's rightly said that it's a new topic and tough topic. It's not an easy task, that the completion of this vast topic in a day, but she did her job, means more than 10%. I can tell that after listening her, I said best teachers always make the tough topic very easy. This was the perception which I got it after after attending the 1 hour 5 minutes of training. Thank you so much, this is- ma'am. I hope the same may be the feeling of the others. You can also praise her. As I got an opportunity, I can do it. Others can write it in the chat boxes. Wonderful session. Wonderful session, Mithali ma'am. You are really a wonderful trainer, and the way you train, that's apart from it, we learn to how we can be a best teacher too. And over to the participants, that kindly already attendance link is posted
In case if you are not got, please inform. We are sending one again, and please complete the task, complete the quiz by 5:30. After that, link will be closed. So thank you from on behalf of all the participants and our training coordinator, Symbol ma'am. Thank you very much. She's doing the wonderful job of allowing everybody to in, and the Himanshu sir, the training coordinator, and above all, our mentor, our all trainer, also our you can say that director, our chairperson, our what more I have to say that our Dr. C.B. Singh sir, because he was eager that he was always telling, ask Mithali to teach SQUAF all the segments. And I'm sure if anybody wanted, again, this topic or the first part, second part, and please, you can write it in the group so that we can train again, we can do it, because I'm sure only one school, 20 teachers can only take part in it. In that way, the many may not be understand it, many may not been able to understand, though the link will be posted in the YouTube, you can watch it also, but I'm sure that's not give that impact if you listen it directly. So you can do it, your principals can also write that. Mithali ma'am is always ready to train us. Thank you very much. Thank you, Mithali. Now you can. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you. Thank you. Participants, please attend to the quiz. It's a 10 questions are there. At least 4 questions to be ready. When I correct, I'm sure you all can do it.
Dear participants, those who have completed the quiz, you can leave the session. Participants, those who are completed, please click and leave. If anybody facing the network issues, please copy it in your WhatsApp and then do it. But you have to complete the task before 5:30. Those who are participants, please pay your attention. Those who have completed the task, you can leave the meeting. If anybody facing the network issues, please copy the link to your WhatsApp and then please do it.
All the participants are requested to kindly copy down the link. Meeting going to be end. Please copy down the link. Kindly copy the link.